प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस 8 बजे चालू हुआ। आई रिमेंबर आई वाज गेटिंग रेडी एंड माय जॉ फेल। ये क्या हो रहा है? To be honest, I couldn't believe. I thought it was a joke. Demonetization has happened. My reaction, I laughed, thinking it was a bad joke. But then 15 minutes later, I was no longer laughing. We took leadership at that point of time. Suddenly, everybody from RBI to Indian Bank Association to Ministry of Finance, everybody wanted to know कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए। मेरा एक डिनर अपॉइंटमेंट था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं टीवी ऑन करके शावर के लिए गया हुआ था टू गेट रेडी फॉर डिनर। आई केम आउट और एज आई वाज चेंजिंग आई स्टिल रिमेंबर वेरी विविडली कि वो टीवी पे प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस 8 बजे चालू हुआ और मैंने उसको फिर ऑन किया कि 8 बजे रात को प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। एंड ही वॉज गिविंग दैट स्पीच अबाउट डीमोनेटाइजेशन के बारे में वो बता रहे थे। एंड आई रिमेंबर आई वॉज गेटिंग रेडी एंड माई जॉ फेल कि ये क्या हो रहा है। बट उस समय भी मुझे स्ट्राइक नहीं किया कि इसका हम पे क्या इम्पैक्ट होगा या हमारी क्या रोल होगी। तो वो सुना और फिर मैं डिनर जिसके साथ था उसके साथ गया। हम बैठ के अच्छे से डिनर विनर खा रहे थे और मेरी फ़ोन घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी, घंटी पे घंटी। एंड आई रिमेंबर दैट इट वॉज गेटिंग सो अनोइंग दैट चूँकि दोस्त था मेरा, आई रिक्वेस्टेड हिम कि बॉस मैं थोड़ा अर्ली क्लोज करके आई पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई रिमेंबर आई केम बैक टू माई रूम और मैं अपना फ़ोन साइलेंट करके उल्टा कर दिया था। मैं रूम में आया तो देखा मतलब मिस कॉल्स का कतार लगा हुआ है। आई स्टार्टेड कॉलिंग बैक, आई वॉज कॉलिंग पीपल बैक। सम वर फ्रॉम SIS की क्या इसका हो रहा है, सम पीपल वर फ्रॉम कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। एंड देन that night only I got this call from a senior government official saying कि आप कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। मैंने बोला जी सर मैं हूँ कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का चेयरमैन, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बॉम्बे कब आ सकते हो। आई एम लाइक मैं बॉम्बे में ही हूँ। ओके कल सुबह इतने बजे यहाँ। एंड देन इन अ मैटर ऑफ 24 hours the world changed. That day I was at an event the residency of one ambassador. It was like 8 p.m. So I remember that. To be honest, I couldn't believe. I started to receive some WhatsApps or some messages while I was there. I was with more people, of course. And then, okay, there is going to be an banknotes are going to be withdrawn, okay, from withdrawn for circulation, and I started to send WhatsApps to my organization, to my team. First, I thought it was a joke. Okay, somebody was trying to kid, so making some joke at that point of time, no. But after that, I realized, and I remember calling someone, a member of the management team of SIS Prosegur, asking directly what is happening, no? And he confirmed this. I was in the car on my way home. Would have been around 8:10, 8:15. I had just left office after a big long day in the office when I got a WhatsApp message from one of the regions telling me that demonetization has happened. My reaction, I laughed, thinking it was a bad joke. But then 15 minutes later, I was no longer laughing because I had got the same message from across the regions telling me that demonetization has happened. My first worry was that thousands of crores of cash in the ATMs. I don't know how many hundreds of crores in the vaults. And what do we do now with that cash? Number one. And number two, what happens tomorrow? Because the entire crew and the entire team will report for work. What do we do with them? 2016 में जब demonetization हुआ, I remember GMD was president for Cash Logistics Association in India. अचानक से सर का कॉल आया और मुझे याद है रात को कुछ 2:30 बज रहे होंगे कि आकाश आपको कल यू हैव टू बी इन मुंबई। 2-2:30 बजे फ़्लाइट की बुकिंग नहीं है और आपको पहुंचना है।
somehow we managed to get a ticket. और मुझे ध्यान है GMD has also updated our CEO Oscar Stibben. So he also called up after GMD's call कि आकाश हमें कल चलना है and I am also coming with you. और सर ने बताया मैं भी कल पहुंच रहा हूं वहां पे, तो आप पहुंचिए because we have to monitor and we have to push everyone. I was traveling back home and suddenly I get a call from the CEO. Where are you? I'm sir, I am on leave. I'm traveling to home. You need to come down to the base. I said, what happened, sir? Because I was not aware that it has happened. So this has happened. So you need to go back to the base. Then at midnight, I have to stop at a station and then board another train back to Bhubaneswar. जब मैं जस्ट गाड़ी पार्क करके घर गया था और जाते ही टीवी में देख रहा हूँ कि अनाउंसमेंट आ रही है। पहला तो वहीं से पता चला, दूसरा फिर तो मतलब कॉल की झड़ियाँ लग गई, सब कॉल करने लगे अब क्या होगा कैसे होगा। अब मेरा रिएक्शन तो यही था कि कैसे होगा, ये सारा केस सारे एटीएम में डले हुए हैं, मेरे वॉल्ट में करीब 150 करोड़ पड़े हुए हैं, सबको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करना है। तो टेंशन तो उसी टाइम से शुरू हो गई। सारा वॉल्ट क्लोज़ करो, डिनोमिनेशन वाइज आप बनाओ, वॉल्ट में क्या कैश है उसका रिपोर्ट भेजो, अभी से शुरू करो। शाम को पता चला, उस टाइम पे मैं लोडिंग कर रहा था। उस टाइम पे हमारे ऑफिस से फ़ोन गया कि नोटबंदी हो चुकी है, आप गाड़ी यहाँ से वापस कर लाइए। वहीं से गाड़ी हम लोग वापस करके ब्रांच में अपनी लाए, कैश वहाँ उतार दिए। देश में कैश दो तरीके से मिलता था, एक बैंक ब्रांच में, दूसरा एटीएम पे, और दोनों जगह कैश पहुंचाने का काम कैश लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री करती है, जो आरबीआई या करेंसी चेक से पैसा उठा के उसको बैंक ब्रांचेस तक पहुंचाती है और वो पैसा एटीएम में जाके लोड करती है। एंड सडनली everybody from RBI to Indian Bank Association to Ministry of Finance, everybody wanted to know कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए। The first thing that we decided as an industry and our company was not working the next day. This happened the 8th of November, so 9th of November we were not working. We stopped operations. All our vehicles were like idle. Was a bit pathetic when you see that, and when you are a logistic company seeing all the assets there on the street, not capable to work. So this was the first thing. Second, I think we took leadership at that point of time. In this case, Rituraj Sinha took the leadership to make the industry together and to immediately, the 9th of November, having a meeting with RBI to coordinate what to do. Because we have to have like a mandate from RBI what to do and what not to do. And in no time I was asked to prepare a note कि हम देश भर के जो पुराने नोट हैं उनको वापस इकट्ठा करने में क्या रोल निभा सकते हैं, और जो नए नोट आए हैं उन नए नोट को एटीएम में डालने में ताकि लोगों को पैसा मिल सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो नोट यहाँ दिल्ली में प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे दिल्ली में जो उस समय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास तक गया। आरबीआई ने एक एटीएम की टास्क फोर्स बनाई, हम लोगों ने बॉम्बे में एक कमांड सेंटर सेटअप किया जिसमें कि सारे एटीएम बनाने वाले, सारे एटीएम मैनेज करने वाले कंपनीज और सारे कैश लॉजिस्टिक्स करने वाले कंपनीज, सबको एक जगह बैठाया गया। We decided to have a war room in Mumbai from where the entire ATM of the country will be monitored. National task force was set up, which comprised of banks, other logistics partners, RBI representatives, and Ministry of Finance representatives, and that was working round the clock. Sitting in Mumbai, they were coordinating the entire effort. Immediately after that, there were multiple conference calls. Mr. Rituraj Sinha was then the president of Cash Logistics Association. So we got on a call multiple times to see, A, discuss what has happened, B, to see what is to be done. Vaults were already sealed, routes were recalled, cash was coming in, and we had multiple calls till about 2:30 in the night when a working plan was made. So Mr. Rituraj Sinha started coordination with the ministry and the RBI and the top level of the banks. We started coordination at the multiple levels of banks at the working level, and the regional teams started coordination with the ground teams to ensure that we are all in sync at the same time. First and foremost, we told our crew
to stick to our internal guidelines of compliances, because even though it was paper, it was still cash, which probably was valid if you take it to RBI. So our cash carrying limits and everything was adhered. Our security protocols were adhered to fully. एज ए कैश लॉजिस्टिक कंपनी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बिकॉज 1000 के नोट निकालने थे, ATMs का कैलिब्रेशन करना था, और सारे नोटों को एक जगह पे पहुंचाना है, नए नोट्स को उठाना है. तो ये एक बहुत बड़ा काम था पैन इंडिया बेसिस पे. उस टाइम पे मुझे याद है कुछ हम लोग 19,000 प्लस ATMs करते थे. We all have been informed internally by Chairman Sir, by Mr. Rituraj, that we have to support our customer even during the demonetization. None of the services should be halted or should be stopped during this period. कंटिन्यू हम लोग जो है बात कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ. प्लानिंग्स हम लोगों की धीरे धीरे चलने लगी थी. ब्रांचेस में भी रश होना शुरू हो गया था. तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान करना, मतलब मैनेजमेंट ने, ऑस्कर सर हो गए, अविनाश सर हो गए, ऋतुराज सर हो गए, सभी लोगों ने धीरे धीरे उनको चीज़ों को प्लान करना शुरू कर दिया था. एंड जो कॉल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग इससे ओवरकम कैसे करेंगे. मेरे रीजनल हेड ने बताया डीमोनेटाइजेशन के लिए आपको प्लानिंग करनी है, ATM से कैश रिमूव करना है, और जो न्यू कैश आएंगे उनको आपको लोड करवाना है विद कैसेट कैलिब्रेशन के साथ. सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था कि आप बोल्ट का क्लोजिंग देखो कि किस डेमो में कितना कैश है, क्योंकि हमारा जो ATM में ऐसे भी चलता है तो हम लोग डिनोमिनेशन वाइज ही कैलकुलेशन करते हैं. एग्जाम्पल हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास 1 लाख रुपया है. 1 लाख रुपया का काउंट क्या है, 100 में कितना है, 200 में कितना है, 500 में कितना है, इस तरह से हमारी कैलकुलेशन होती है. तो हम डिनोमिनेशन वाइज काउंट चाहिए था हमें. अपने लोगों को मैंने एड्रेस किया यहीं दिल्ली में करेंसी चेस में, और मेरे मन में चिंता थी क्योंकि उस समय सारे लोग परेशान थे. सबके घर में परेशानी हो रही, किसी के पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, घर में कैश है, वो कैश की बदली करनी है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स थे. तो मैंने सबको एड्रेस किया, और वर्कर लेवल, ड्राइवर्स और जो गनमैन कैश वैन में जाते हैं, कस्टोडियन जाते हैं, मैंने बोला कि देखो यार, अभी 2 चीज़ कर सकते हैं. या तो अपने घर की चिंता कर सकते हैं, या घर की चिंता के साथ साथ अपने देश की भी चिंता कर सकते हैं. क्योंकि पूरे देश में 10,000 कैश वैन है, जिसमें से 1/3 हमारे हैं, और पूरे देश में करीबन 30,000 लोग हैं जो ये ATM का काम करते हैं. उसमें से 1/3 हमारे हैं. क्या करना है आप बताओ. एंड आई रिमेंबर दैट गार्ड, ड्राइवर, कैश कस्टोडियन, जूनियर लेवल मैनेजर्स, क्या रिस्पॉन्स था उनका. बोला सर आप चिंता मत करो, आप बताओ करना क्या है. फिर किसी ने बोला कि सर आने जाने में समय लगेगा, हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, और ऊपर ही एक भोजन व्यवस्था हो जाए, लंगर लगवा दो और गद्दे गुद्दे आ जाएं सर, तो हम यहाँ यहीं सो लेंगे सर, यहीं पे चेंज चूंज करके काम पे लगेंगे, घर आने जाने का समय बचेगा. एंड आई वॉज ब्लोन. मैं उस एड्रेस में गया था सोच के कि हमारी इंडस्ट्री SIS तो नहीं, पर अन्य कंपनी यूनियनाइज्ड भी हैं. तो मुझे लगा कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, इसमें क्या एक्स्ट्रा डिमांड्स होंगे, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, इसकी एक लाइन चर्चा नहीं हुई. 1 घंटे की बात में SIS का सिस्टम, फिर वहीं से फ़ोन्स लगने लगे सारे रीजन में. उस समय उतना वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रचलन नहीं था. सारे फ़ोन्स पे सबको सूचना हुई कि जब दिल्ली में ये तय हुआ है, उसका ऑफिस ऑर्डर छपने लगा, कैसे काम करना है. सारे ऑफिसेज में लंगर लगाओ, या उसके रहने की व्यवस्था करो, या आने जाने की व्यवस्था करो. एंड इन अ मैटर ऑफ नो टाइम SIS वाज अप एंड रनिंग. SIS प्रोसिक्योर के लोग खटाखट अपने काम पे लगे, और SIS प्रोसिक्योर के लोग चूंकि काम पे लगे, तो बाकी जो कंपनीज इस क्षेत्र में हैं उनके लोगों को भी लगा कि नहीं, हमको भी करना है. Everyone was very committed in our organization, and we reciprocate that, because everyone was working long hours by having some temporary facilities in our premises for people to rest. I think there was like 2 ways, no commitment from our company to the employees, and the most important thing, the employees towards this big earthquake, I will say.
messages were down to everyone, and we use resources of the company from top to the bottom, through VPs, through regional heads, through branch heads, to executives, and finally to staff. And I think there was complete alignment. So that system, communication system worked. Next 15 to 20 days or 1 month is going to be very hard for everybody. We start immediately to do briefing with the crew, to meet with them. We arrange them food and stay every branches, and morning and evening we used to meet with them. Are they happy or they are not feeling any problem? उन्होंने उस टाइम पे 18 to 20 आवर्स वर्क किया, 16 आवर्स वर्क किया ग्राउंड पे, और उन्होंने बिना घर गए, मतलब 15 दिन 20 दिन तक वो घर नहीं गए. दैट वाज स्टार्टेड ऑन 8th of November को ये हुआ था, और मुझे आज भी याद है 5 या 5 to 6 दिसंबर के आसपास वो जाके थोड़ा सा रिलीफ उस वर्किंग आवर्स में होना स्टार्ट हुआ था. अदरवाइज एवरी क्रू ऑन द ग्राउंड 15 to 16 आवर कंटिन्यू सर्विंग देयर जॉब. हमें बाकी 4-5 दिन तो मैं ऑफिस में ही रुका था, क्योंकि अगर आपकी ग्राउंड टीम काम कर रही है और अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो तो एक गलत सा स्टोरी जाता है. तो सबको बूस्टअप करना, सुबह एकदम फिर से वार्म अप करा के चार्ज करना कि भैया एकदम 6:30-7 बजे आपको निकल जाना है वार पे, क्योंकि नोटबंदी हमारे लिए एक तरह से वार था. खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, इन लोगों ने रुका, रात में आने जाने की व्यवस्था थी, लेट हो जाते तो घर छोड़ने की व्यवस्था थी, गाड़ियों से छोड़ देते थे, और यहाँ पे नहीं जा पाते थे तो यहीं पे सोने की और खाने पीने की व्यवस्था थी. वैसे भी उतना टाइम नहीं, सारा कैश काउंटर में रात भर निकल जाती थी. ATM के अंदर जो कसेट लगती, जो डिस्पेंसर लगता है, उसमें जो पुराना नोट था उसकी साइज़ अलग थी, नए नोट की साइज़ अलग थी, तो उसका पूरा ATM मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ा. हमारे जितने ATMs थे उसको हम लोगों ने मैनेज किया, और पूरे देश के करीब 2.25 लाख के आसपास उस टाइम पे ATM हुआ करते थे, उनका कैलिब्रेशन हुआ. नए नोट हमारे पास तीसरे दिन आ भी गया था, बट जब नोट आया तो हमें पता चला कि ये नोट तो ATM में डल ही नहीं सकता, क्योंकि नोट का डिनोमिनेशन अलग है. हम 1000 का डालते थे, उसके जगह 2000 आ गया. हम अब उसमें अगर 1000 डालेंगे तो पब्लिक को 2000 का नोट तो मिलेगा, लेकिन वो 1000 में काउंट करेगा. 500 का कैश भी हम लोग 500 वाले कैसेट में नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया है. 200 डिनोमिनेशन का केस पहले हुआ ही नहीं करता था, 200 का डिनोमिनेशन आ रहा है हमारे पास, तो वो ATM में डल नहीं सकता. तो वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम अब ATM में डालें कैसे. पैसा आ भी गया तीसरे दिन, पर हम वो डाल नहीं पा रहे. तो उसके लिए भी फिर वही प्रक्रिया था, उसका कुछ वो था, ATM में कैलिब्रेशन करना पड़ता था, कैसेट का साइज़ छोटा करो, किसी का बड़ा करो, और वो ATM को भी सॉफ्टवेयर अपडेट करो उसमें, ताकि वो फिर उस नोट को पहचान सके और उस नोट के अकॉर्डिंग डिस्पेंस कर सके. There were not enough engineers for the number of ATMs that were in the country. So recalibration had to be by means of an engineer of the OEM, the manufacturer of the ATM machine. So there was much more demand of these engineers than number of engineers at that point of time. So there was some scarcity. So there was some internal fights among companies to try to pick up more engineers than others to try to accelerate the process. That happened. जियोग्राफिकली भी चैलेंजिंग है. अब आपको J&K से जम्मू से श्रीनगर गाड़ी लेके जानी है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. हम लोगों ने एक वहाँ पे मोबाइल कैश वैन्स इंस्टॉल की थी, क्योंकि बहुत सी ATMs जो थे वो फ्लड में ख़राब हो गए थे, तो सारा प्रोसेस वहाँ ख़राब हुआ था. वहाँ सेफ्टी भी देखना है, टेररिज्म है, गाड़ी लोनली एरियाज़ में जा रही है, देखना पड़ता था कि प्रॉपर टाइमली जाए, ऑफ आवर्स में ना जाए. हिली स्टेशन में एक अलग चैलेंज है कि वहाँ पे इवनिंग जो है आपका बहुत जल्दी हो जाता है. मीन्स अराउंड 6 यू विल फील लाइक 9 PM इन दिल्ली. तो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज इन नाइट टाइम रिस्क फैक्टर इज आल्सो हाई. But we focus, we motivate our team members, including with them. I also go with them to cover those deposition or whatever the cash we had got from chest to be deposited in branches, so that in next day morning when people will come for transaction, they will get the cash. लॉजिस्टिकल चैलेंज ये था कि क्रू लिमिटेड थे,
हमें कैश भी निकालना था, उसको बैंक में जमा भी कराना था, ये सारी चीज़ें करनी थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब 1 या 2 इंजीनियर होते हैं और हमारा 4-4, 5-5 रूट चलता है ग्राउंड पे। तो करेंसी को लेके जाना, फिर इंजीनियर को साथ में लेके जाना, कैसेट की रीमैपिंग करनी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। और होता क्या था कि जिस समय क्या कहते हैं कैश भी उतनी मात्रा में मिल नहीं पाती थी, क्योंकि आरबीआई वगैरह से कैश का मूवमेंट भी हम ही करते थे। तो जितना आरबीआई हमें कैश देता था उस हिसाब से बैंकों का जो ज़रूरत था और जो एटीएम्स की ज़रूरत थी वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। आई गॉट ए 1 or 2 कॉल्स कि आप लोग कैसे कर रहे हो, कि मतलब आप लोगों के एंड से कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपकी स्मूथली टीम जा भी रही है, काम कर भी रही है। इवन बाकी जो हम लोग CRA बोलते हैं, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज बोलते हैं, तो बाकी जगह उन लोग जो है सर्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि होता है ना कि वो लोग बैंक में जाते थे, एक ट्रिप ख़त्म हुई तो दे आर नॉट रेडी टू फॉर सेकेंड ट्रिप ऑल्सो, क्योंकि हम लोग थक गए, हमारे बस की नहीं है। लेकिन हमारी टीम जो है दे आर मोर डेडिकेटेड, और उन्होंने डेडिकेशन का भी रीज़न यही था कि वी आर गेटिंग सपोर्ट एट एज वेल एज अवर जो हमारे एग्जीक्यूटिव और ब्रांचर्स थे वो ग्राउंड में खड़े थे उनके साथ में। तो जब भी उनका कॉल आया, किसी को कोई दुख है, तकलीफ़ है, दे टुक द कॉल एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उसी वजह से हमारी टीम हमारे साथ थी। बस ये था कि शायद दूसरी टीम में उतना मोटिवेशन और वो सब नहीं था, तो इसलिए उनकी टीम के साथ नहीं खड़ी थी। जो भी रूट्स चल रहे हैं, जो ATM रूट्स पे जो भी लड़के काम कर रहे थे, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ATM हमारे नियर बाई है, देन कौन सा मिड में है और कौन सा हमारे लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वी हैव टू कवर फर्स्ट। जिस ATM को हम 3 दिन में 1 बार लोड करते हैं उसको 1 दिन में 3 बार करना पड़ा, तो गाड़ियों का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया। उस दौरान अब एक ATM को 3 बार लोड करना है, तुरंत डाल रहे हैं तुरंत खाली हो जा रहा है, तो वो लॉजिस्टिक चैनल तो था ही। हाँ, सबको ही दिक्कत आई थी, हमें भी आई थी। बैंक से पैसे जमा कराना जो हमारे पास था, जनता को भी बहुत काफ़ी परेशानी हुई, लाइन में लगना पड़ता था जो पुराना पैसा वो जमा कराने के लिए। हम भी परेशान थे उस चीज़ से। नोटबंदी से पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारी लोडिंग आती थी 10 की या 12 की, वो लोडिंग हम लोग करके अपने आराम से आ जाते थे। और नोटबंदी होने के बाद में फिर तो 25-25, 30-30, 20-20, 35-35 तक ATM मैंने किए, करवाए हैं हमारे कस्टोडियन द्वारा। 35-35 ATM की लोडिंग करवाई। ना भीड़ काफ़ी होती थी, तो लेकिन देखा हमने कि जो है कि अब ये हमारे काबू में नहीं आएगी, तब हम पुलिस को फ़ोन करते थे, मैं साहब आप लोग आइए यहाँ पे, हमको ATM लोडिंग करना है। तब वो लोग आते थे, तब भी हम कैशियर को उतारते थे नीचे और कैश लेते थे अंदर से। जहाँ पे जाते थे वहाँ पे भीड़ बहुत होती थी, तो अपने हिसाब से हैंडल करते थे कि गनमैन भी थे हमारे साथ, हमें भी डर था पब्लिक किसी टाइम टूट भी सकती है। जब मैं ऑफिस से निकलता था तो अपनी गाड़ी को चेक करके निकलता था, पैनिक बटन, हूटर, टायर वगैरह सारा कुछ चेक करके, उसके बाद में निकलने के बाद में फिर मैं अपनी ब्रांच के नियर बाई गाड़ी को रोकता था। उसके बाद में गनमैन भी उतरते थे, उनके बाद में वो कैश ऑफिसर उतरते थे। हमारे अधिकारियों ने हमें बताया गया सबसे पहले दोनों अपना गन में जाओगे और अपनी सबसे पहले गन लोड करोगे। गन लोड करने के बाद में जब हम दोनों साथी खड़े होते हैं उसके बाद कैश ऑफिसर से बोलते हैं आप कैश लीजिए। जब देखा जगह सही है तभी कैशियर को उतारते थे नीचे और कैश के लेके ATM में जाते थे और शटर डाउन किया और तब लोड कराते थे सर। 4 कैस्टों के में कैश भरा हुआ होता है, उन सभी बैगों में सील लगा हुआ है। उस टाइम पे बॉक्स में कैश चलता था, तो जैसे 10 लोडिंग या 15 लोडिंग उनका कैश बॉक्स में जाता था। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किसी भी बॉक्स का मजबूत ताला लगा हुआ होना चाहिए, उसका जो बॉक्स टूटा नहीं होना चाहिए। बॉक्स सही सलामत, जब बॉक्स हम दोनों गनमैनों की निगरानी सही सलामत बॉक्स है, उस टाइम पर कस्टोडियन हम लोग आदेश देते थे भाई अब बॉक्स गाड़ी में रख लीजिए। जब हमारे कैश ऑफिसर गाड़ी में बॉक्स रख लेते थे उसके बाद हम 5 लोग गाड़ी में अपने बैठते थे। लोग पूछने आते थे अब अगला स्टेप कौन सा है आपका, हम जाके लाइन लगाएं वहाँ पे, तो ये सब हमें पॉसिबल नहीं था बताना कि हम किसी को बताएं कि अगला स्टेप हमारा कौन सा है। जिसको मालूम था कि गाड़ी यहाँ से कहाँ जाती है या ATM था, तो कुछ लोग तो बाइक से पीछे लगे रहते थे कि गाड़ी कहाँ खड़ी हो, कहाँ निकाले, नंबर हम पहले लगा लें। प्रशासन से हमें सहयोग इस प्रकार मिलता था कि कहीं पर हमें दिक्कत होती थी रास्ता में, वो पुलिस को फ़ोन करते थे, तुरंत ही पुलिस सेवा मिलती थी, तुरंत ही हम लोगों को
और हमारी गाड़ी में हूटर भी होता है, जैसे सायरन बोलते हैं, वो जब बजाते ही पुलिस वाले तुरंत ही आम गाड़ियों को हटा देते, हमारी गाड़ी पहले निकाल देते। ऐसे पैसे आ रहे थे और जा रहे थे कि मतलब 10-20 नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए पुराना नोट उठा के लाके डंप किया हुआ था। उतनी ही मात्रा में नए नोट की करेंसी आके पड़ी हुई थी रिप्लेनिश करने के लिए। इतना बड़ा काम हुआ। 1 रुपए का आरोप, किसी प्रकार का आरोप SIS प्रोसिक्योर के किसी कर्मचारी पे नहीं आया। सबने जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे ज्यादा जान लगा के काम किया, बिना अपना कोई ध्येय देखे हुए और बिना किसी गड़बड़ी के 100% ईमानदारी से। During demonetization, we had heard that our competitors used to exchange money from the vault, because vault normally have plenty of cash, crores and crores of cash. But we had these strict instructions from the management, from Mr. Rituraj and Chairman Sir, that none of such case should happen with our vault, and the entire vaults were sealed, that no exchange of cash should happen from the vault. In fact, during demonetization, we heard some of the competitors were struggling with the court cases because of this exchange of the money. But we were very clean chit. SIS Prosegur, due to moral values, we never deviated any of the processes. Our company got leadership, though it's not the biggest cash management company in the country, but at this point of time got that leadership. In the conversations with RBI, leading the industry on withdrawal of cash from ATMs, on recalibration of ATMs. जहाँ से एक्चुअली जो SIS प्रोसिक्योर की विजिबिलिटी है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा, और कैश लॉजिस्टिक्स एसोसिएशन को चूँकि लीड कर रहे थे, तो उसके द्वारा दिखना एक शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग नंबर 1 नहीं थे, लेकिन लीडरशिप के मुकाबले, मतलब लीडरशिप के हिसाब से हम देखें तो हम हमेशा अच्छी पोजीशन पे थे। The chapter about finishing the demonetization in a proper way, I will say around 26th of November. We were the first and the only company to do recalibration in 3 days and completing the entire loading process within 15 days. We still have the appreciation letters of demonetization with us, and that was really a journey where there were a lot of challenges, but we came out very successfully as SIS Prosegur. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले जो हमारे AGMs थे, RM सर थे, वो लोग भी फील्ड में आए थे क्योंकि बहुत चैलेंजेस थे। तो हमारे लोग वहाँ वो देखते थे कि 4-5 दिनों से ये लोग मॉर्निंग में कोई शिफ्ट वाइज कोई 7 बजे आ जाता है, 12 बजे तक भी यहीं है। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया, और हमारे जो सारी टीम थी उनको एक, जब ये सारा प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ तो एक फेयरवेल सा ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने। बैंकर्स को भी, हम सबको, जो भी वहाँ एजेंसीज काम करती, सबको एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया और थैंक्स किया कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे टाइमली हम ये चीज़ें अचीव कर पाए। The new currencies were being delivered to the branches, and where the recalibration of the ATMs were completed before time, and when people used to thank us on roads that for you we are getting the money, that was biggest thing for me. We got appreciation from Axis Bank, HDFC, and many nationalized bank, State Bank of India. जब कंपनी ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया, बेस्ट आर्म गार्ड का हमें सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। हमारा काम देखा, हमारी कंपनी ने देखा काम, हमको शाबाशी भी दी, हमको इनाम भी दिया, और हम घर पर गए, हमारे बच्चे भी खुश हुए इनाम देख के कि जो का ये कंपनी ने क्यों नहीं दिया है। एप्रिशिएशन की उस टाइम मैं बोलूँगा तो हमारे पास तो झड़ी लगी हुई थी कि एवरीबडी कम्स एंड दे अप्रिशिएट। कुछ ने लिख कर के अप्रिशिएट किया, कुछ ने फ़ोन पे बोला थैंक यू कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया से ये चीज़ें हैंडल की हैं।
We have like all the letters, all the appreciations. We made like a book with them. So plenty from every angle, from banks, from OEMs, from MSPs, from I would say every stakeholder in the industry. SIS की जर्नी में कई सारे ऐसे फेजेस आए हैं जो कि SIS ने देश के लिए काफ़ी एक फंडामेंटल भूमिका निभाई है। और हमारे अंदर एक देश भावना, देश सेवा की भावना तो था ही। रियली अगर वो नहीं होता तो हम लोग शायद 10 दिन तक लगातार ऐसे काम नहीं कर पाते। आउट ऑफ द वे जाके, जैसे वी सर्व बैंक फ्रॉम 9:30 to 5, तो नहीं 24/7 सर्विसेज, ट्रीटेड लाइक वार। वो एक भावना था कि पहली बार देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा। फौजी भी हमारे खड़े रहते हैं 30 दिन, महीनों बॉर्डर पे, तो क्या हम लोग 10 दिन नहीं रह सकते? जैसे वॉर में क्या होता है कि जो सोल्जर्स हैं वो आगे फाइट करते हैं, जो उनकी बैकअप टीम होती है जो उनको एम्यूनिशन पहुंचाती है, ये सब करती है, फैसिलिटीज़, फूड, एम्यूनिशन, तो हम वो वाला रोल मेनली प्ले कर रहे थे। इससे बड़ी देश सेवा हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को जो है उनकी ज़रूरत जो है पूरी कर पा रहे हैं, कैश उनके ATM तक पहुंचा के, ताकि उनके पास तक जा रहे हैं। वो देश सेवा ही थी जो हम डाल रहे थे और लोग पैसा निकाल रहे थे। सिक्किम, दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल एरिया में ऐसा था कि लोग को पता ही नहीं था कि कैश आएगा कैसे। इवन दो बैंक पर्सन ऑल्सो डोंट नो, ब्रांचेस को टाइमली मेरे टीम मेंबर्स कैश वैन वहाँ पे अवेल हुए, तो वी फील प्राउड, आवर टीम फील प्राउड कि यस दिस इज ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कंट्री। देश सेवा की भाव से ही किया है, अभी भी वही करते हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए थे, तो हमने अपना टाइम नहीं देखा कितना टाइम लग रहा है हमारा, जनता की सेवा करनी है हमको। But I'm really proud of my team and the crew members who actually gave it all. I think there was a sentiment of commitment with the country from everyone, from the company, from the individuals, and something that was beyond us, something that was more important than us. Indeed, everybody was aware of the long queues, everybody was aware about the shortage of cash, so everybody wanted to help the citizens of India to cope with that situation. सही में एक बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि एक बहुत उम्दा टीम के साथ और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का जीवन में अवसर मिला।